हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी की सीरीज लेकर आया हूँ। क्लास 8 चैप्टर नंबर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। So class, let me ask you a question. Have you ever thought that is everything around us that exists actually visible to our eyes? मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का जवाब नो होगा। And today we are going to enter a hidden world, a world that is alive, that is active, but invisible to our naked eyes. So, my dear friends, this chapter teaches us one very important lesson, that curiosity leads to scientific discovery. And also, further, we will study about the human eye, which has limitations. The human eye has some limitations, due to which microscope was discovered. But why? Microscope, अगर मैं आपसे पूछूं माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी क्यों हुई? Because of curiosity. Curiosity of what? Curiosity to see the invisible world, which are alive and active. Okay. So it can, we know that human eye has limitations. It can see only objects that are above a certain size. Very tiny things exist around us, but we cannot see them directly. For a long time, we all know that the tiny organism uh, exist on the earth. Okay? मीन्स ऐसा है कि बहुत पहले से ही हम नहीं जानते थे, बट जो टाइनी ऑर्गेनिज्म है वो इस धरती पे, इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करती थी, exist from a long time. Humans did not know about these tiny organisms, but this is not because they didn't exist, but because our eyes were not powerful enough. तो हमने अपने आईज को पावरफुल बनाया। कैसे बनाया? डिस्कवरी से। डिस्कवरी ऑफ व्हाट? डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो लॉन्ग अगो people discovered something interesting. Okay, people discovered लेंटिल सीड के आकार का एक लगभग लोगों ने क्या बनाया? लेंस बनाया। ठीक। अब ये ऐसा नहीं है जैसा मैं कह रहा हूँ आपको कि ये लेंस, अगर यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया लेंस, तो वो लेंस एज इट इज था जैसा आज आप देखते हो। नो, ऐसा नहीं था स्टूडेंट्स। पीपल डिस्कवर्ड अ कर्व पीस ऑफ ग्लास। ओके, अ कर्व पीस ऑफ ग्लास, वेरी टाइनी ग्लास। ओके, shaped like a lentil seed. It was shaped like a lentil seeds. अगर मैं आपको देखो आगे के स्लाइड्स में दिखाऊं, जस्ट लाइक अ लेंटिल सीड्स, बहुत ही छोटा आकार में, बहुत ही छोटा। ठीक है, थिक इन द मिडल, thick in the middle and thin at the edges. And because of this shape, it was called a lens. Okay. So lens is a curved, transparent piece of glass. It depends light ray and make objects appear larger. Let not, यहाँ पे एक आप सुधार लेंगे बच्चों, let not depends, sorry, glass that bends, okay, bends light rays and make objects appear larger. So this is the definition of lens. But ये lens करता क्या है? This lens is used for magnification. Now what is magnification? Magnification is the process of making an object appear larger than its actual size. तो एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं? हम इस लेंस का यूज कर रहे हैं किसी भी चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ये एक लेंटिल सीड है, जैसे इसको आकार में बड़ा करके दिखाया गया है यहाँ पे। तो एक लेंटिल सीड की तरह हमें एक ग्लास मिला जिसे हमने लेंस नाम दिया। इससे अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो जो टाइनी ऑब्जेक्ट है, छोटे ऑब्जेक्ट जो भी है, वो आपको बड़े आकार में दिखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? सो मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट appear larger than its actual size. Now, let us understand मैग्निफिकेशन विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। ये आप चाहे तो अपने क्लासरूम में भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, या आप टीचर को कह सकते हैं कि ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए। ठीक। Now, when we fill a round bottom flask, see here, as you can see, as we fill a round bottom flask with a water, okay,
मैंने इसमें क्या भर दिया, पानी, वाटर. Now it behaves like a magnifying glass. The letters which is written on the book will appear bigger. Why? Because water and glass together act as what? Act as a lens. Okay. So not only in microscope, even simple objects can magnify. Even simple objects like a water, like a flask fill of water, flask filled with water can magnify the objects. Okay, my dear friends. So if you are okay, my dear students. So if you are thinking that, oh, is this the end? क्या यहाँ पे रुक गए हम? क्या इसके बाद कुछ भी नहीं? Then you are wrong, my dear students. I'm very sorry to say this. Because human curiosity did not stop here. People wanted to see things even smaller. So in 1665, a scientist named Robert Hooke published a famous book called Micrographia. Micrographia. Now, what he observed a thin slice of cork. As you can see, the Robert Hooke microscope. He observed a thin slice of cork in this. Okay, a thin slice of cork under this microscope and saw many tiny empty chambers like a honeycomb. Okay, and he named these structure cell. Okay, my dear students. Next, all living beings. So he named it as cells. On the other hand, Antony, this is E, my dear friends, corrected. Antony van Leeuwenhoek, who was known as the father of microbiology, he was the first to see bacteria and blood cells. Okay, as we know, student, that all living beings, plants, animals, humans, all are made up of cells. Cell is not empty; it has parts that perform specific functions. As you can see in the picture, this is animal cell, this one, and this one is plant cell. तो बहुत सारी ऐसी पार्ट्स हैं इनके जो आपको दोनों में कॉमन नजर आएंगे, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, बट इनमें बहुत ही मेजर डिफरेंस है. व्हाट व्हाट द डिफरेंस आर. तो ये डिफरेंस मैं आपको अगली स्लाइड में भी समझाता हूँ. पहले आप ये देखें कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है और प्लांट सेल में क्या सेल मेम्ब्रेन होता है. अगर सेल मेम्ब्रेन होता है तो एनिमल सेल में और उसके सेल मेम्ब्रेन में क्या फर्क है. फिर एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. सो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर बाउंड्री, which controls the entry and exit of the substance. what type of substance, जो बाहर से आने वाले सब्सटेंस को वो रोकता है. क्या अंदर जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, इसको रेगुलेट कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन. दूसरी तरफ है साइटोप्लाज्म. दोनों में ही प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म. So it is just a jelly like substance and this is known as the site of life process. So जो साइटोप्लाज्म होता है वो जो लिक्विड पार्ट आपको दिखाई देगा किसी भी सेल में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, दे आर नोन एज साइटोप्लाज्म. थर्ड इज न्यूक्लियस. जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, ह्यूमन ब्रेन है जैसे, ठीक है, उसी तरह इनका क्या होता है, जिस तरह ह्यूमन ब्रेन है ना स्टूडेंट्स, सेम उसी तरह का काम करता है ये न्यूक्लियस. It acts as a control center. Controls what? Controls the growth and activities of the cells. Clear? If you have any problem, अगर आपको कुछ भी समझ में दिक्कत हो तो आप मुझे बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं. क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. नाउ अब थोड़ा सा सेल को समझते हैं क्लैरिटी के साथ, एनिमल सेल और प्लांट सेल को. कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू. सो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया अनियन पील का. ठीक है, अनियन पील एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है. जैसे आप प्याज को जब कट करोगे तो उससे एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर निकलती है. ठीक है, उस लेयर को हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में रखते हैं. ठीक है, आप उसको माइक्रोस्कोप में रख के जब चेक करोगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो ऐसा फिगर में बना है. ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको. ओके माय डियर फ्रेंड्स, ब्रिक लाइक आप इसे कह सकते हो एक
जिस तरह आप देख रहे हो, ये जो इस तरह से ईंटें ये रखी गई हैं, जिस तरह ये ईंटें रख के वॉल बनाई गई है, लगभग लगभग उसी तरह का ये अनियन का सेल होता है। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक रिजिड आउटर लेयर। ठीक है, एक रिजिड आउटर लेयर आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब में। ठीक है, ये है क्या? दिस रिजिड आउटर लेयर इज नोन एज सेल वॉल। और ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो व्हाइटिश व्हाइटिश जो जेली लाइक सब्सटेंस है, दे आर नोन एज द साइटोप्लाज्म, दीज आर द लिक्विड पार्ट। ओके, सो यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो अनियन पील हमने यूज किया, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड है, तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है? सेल वॉल दिखा रहा है। एंड वी सी दैट these rectangular cells are arranged like a bricks in a wall. Clear? सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा जो है वो है ह्यूमन चीक सेल का। If we will observe this human cheek cells, it is just like a polygon shape. You can say it a polygon shape, or sometimes it is an irregular shape. You can also say it is an irregular shape. So people sometimes say it is a polygon or irregular shape. Okay, clear? So what does this shows? This shows that plant and animal cells differ in structure. Cell membrane, nucleus, cytoplasm, nuclear membrane, everything is together. But one major difference is there that they do not have a cell wall. Cell wall is absent. They do not have a cell wall. Okay. तो आपकी किताब में एनसीईआरटी में जो न्यू एनसीईआरटी है आपकी, इसमें प्लांट्स और एनिमल सेल का ज्यादा डिफरेंस है जिसमें नहीं दे रखा, बट मैं आपको कुछ डिफरेंस प्लांट्स और एनिमल सेल में बता देता हूँ। जैसे कि प्लांट सेल क्या होता है? दे हैव अ सेल वॉल, बट एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल. It contains chloroplast. Chloroplast is used for photosynthesis, but this lack chloroplast in animal cell. In plant cell have a large central vacuole, and this animal cell have a small vacuole. They have a fixed rectangular shape, which is plant cell, and animal cell have a irregular rounded shape. Similarly, plant cell do not have a centriole, and they have animal cell have centriole. So, friends, I just want to say you that अगर आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल पे एक अलग से वीडियो चाहिए, तो मैं उसमें भी आपको एक अलग से क्लास की वीडियो बना के मैं अपलोड कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल इन दोनों का डिटेल चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।